Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is hydroboration oxidation. Actually, we will discuss hydroboration oxidation, hydroboration reduction, hydroboration chlorination also. Okay, so we will discuss all three, but in general we say this reaction hydroboration because in first step in all three reactions we will see hydroboration reaction. So what is that reaction? In this reaction you will see that catalyst is written as BH3, but actually BH3 is not stable because BH3 is having only 6 electrons in its octet, and its incomplete octet makes it highly reactive and it dimerizes in the form of B2H6. So in exam or in question they will write you B2H6, but you have to consider it 2 molecules of BH3 because B2H6 is equivalent to 2 molecules of BH3. So ultimately the catalyst will be BH3. Now in BH3 we all know that there are 2 boron, and if all 4 terminal hydrogens are planar, then bridge hydrogen will be vertical, means above the plane and below the plane. And if these 2 hydrogens are planar, then terminal hydrogens will be like that. Above the plane and below the plane, this way and that way, means these 2 hydrogens are perpendicular to these 4 hydrogens. So this is an electro deficient compound. Similarly, other compounds of boron also, they are electron deficient like BF3, BCl3, BBr3, Bi3. In all these compounds, the hybridization of boron is sp2 hybridization, and we get 3 orbitals of at 120 degree. And if 3 fluorine atoms are there, they all have one perpendicular orbital above the plane and below the plane, which is filled also with 2 electrons, whereas the perpendicular unhybrid p orbital is vacant. So these 2 orbitals means this one is filled and this one is vacant. They can do side by side overlapping. Similarly, this one can do, similarly that one can do. So because one orbital is filled and other is vacant, so they can shift their electron density towards boron. And in this case, the deficiency of boron is almost satisfied with 3 fluorine atoms, and there will be partly double bond character. That's why BF3 is the weakest Lewis acid. Whereas if we increase the size of halogen atom, chlorine, bromine, iodine, we see that in case of chlorine the hybridization of boron is same, but the unhybrid p orbital of boron is 2p, whereas filled p orbital of chlorine is 3p. So there is a size difference between 2p and 3p. So if one orbital is very big and the other is a small one, they can't do side by side overlapping properly. And in case of bromine and iodine, instead of 3p it will be 4p and 5p, means there will be a big gap between the size of orbitals of boron and halogen. So we see that in case of Bi3, sidewise overlapping is very poor, so it is most electron deficient and it is highly reactive also. Whereas BF3, you will see that it is least electron deficient. So we can say Lewis acidity increases from BF3 to BCl3 to BBr3 to Bi3. Okay. Now we are going to discuss how BH3 helps us in hydroboration reaction, hydroboronation reaction. Suppose this was the molecule of ethene. This is one sigma bond and other one is pi bond. Because it has pi bond electron pair, so that's why it can act like a Lewis space. And if BH3 comes close to it, it is electron deficient, so it will take bond pair of pi bond from ethene to in its vacant orbital, and it can make pi complex. Okay, likewise this pi complex easily get rearranged into sigma complex. How this electromeric shifting will happen from this carbon to that carbon, or in either way, this way or that way, because there are no other substituent. So all chances are there, 50% this side, 50% that side. I have considered that these electrons are shifting here.
by electromeric shifting. So this carbon will possess negative charge. This negative charge will get bonded with boron. So this is boron hydride sigma complex. Okay, and now this carbon will have positive charge because pi bond electrons are shifted to that carbon. Now you see this carbon is sp2 hybrid. This is carbonium ion. This is sp2 hybrid. sp2 hybrid means it is planar. Planar means carbon has one bond with this carbon in the plane and two hydrogen in the same plane. One this way, one that way. So this hydrogen from boron along with bond pair of electron, it can attack from top side and from bottom side, both 50% chances from both top side, 50% chances from bottom side. So you will get 50% this product, this hydrogen get from this side and 50% from that side. So and the other carbon will have BH2, this one BH2. Now in the same way, this is ethyl boron hydride. Now, in the same way, if other molecule of ethene also comes, it can give one more hydrogen and it can make bond with vacant orbital. So, you will find diethyl boron hydride in the same way. Similarly, if third molecule of alkene also comes, it can make triethyl boron hydride. So, now you tell me that if this is the case, you will find 50% syn product and 50% anti product. But in actual practice, we see that 100% we are getting syn product, not anti product. It means hydrogen and boron attacking to ethene from the same side, not one from this side and other from that side. So it means this mechanism is not 100% correct. So we have to change our mechanism. So we see what actual mechanism of hydroboronation reaction. तो हमने देखा कि अगर हम हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में करते हैं कि पहले बोरोन हाइड्राइड के ऊपर पाई बॉन्ड का अटैक हो और फिर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करे, तो उसमें क्या होता है, हमें 50% सिन प्रोडक्ट मिलता है, 50% एंटी मिलता है. लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वी आर गेटिंग 100% सिन प्रोडक्ट, तो इसीलिए हमने अपना क्या किया, मैकेनिज्म को चेंज किया. कैसे कि ये इथीन मॉलिक्यूल था, इसके पास ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड जो पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के बीच में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ना तो इसके इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना ही कोई इस कार्बन के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है. और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग these electrons can be shifted either in this direction or in that direction, means both way are possible. तो मैंने अभी क्या कंसीडर किया है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुए, तो अब जब इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग इस तरह हुई तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और साइमल्टेनियसली इधर से ये बॉन्ड बनाएगा बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, और इसका ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा. तो जब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पाई बॉन्ड था ये बीच में क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता है कि नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन दो एक साथ होता है और ओल्ड बॉन्ड्स का जो फिशन है वो भी एक साथ, यानी कि ब्रेकिंग एंड फिशन दोनों प्रोसेस क्या चल रहे हैं, साइमल्टेनियस. और हमें क्या मिल रहा है, एक साइक्लिक स्टेट मिल रही है. देखो ये फिशन हो रहा है, ये फिशन हो रहा है, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इमीडिएटली आफ्टर दिस स्टेप क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा इसी डायरेक्शन में और बोरोन इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, एंड यू विल गेट सिन प्रोडक्ट इथाइल बोरोन हाइड्राइड. और अगर इसके ऊपर हम इसी तरह से हम दो मॉलिक्यूल्स और इथीन की रिएक्शन कराएं तो हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है ट्राई इथाइल बोरोन मिलता है. तो
तो यहाँ आपने देखा था कि आपके पास चॉइस थी इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, यू कुड शिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे एक कार्बन की जगह आर ग्रुप होता, आर या मिथाइल इथाइल एनी ग्रुप होता, तो वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट रखता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या होंगे, टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब टर्मिनल एंड की तरफ शिफ्ट होंगे, और टर्मिनल एंड की तरफ शिफ्ट होंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ साइक्लिक intermediate state and finally product you will get this type of means propyl boron hydride। फर्स्ट यू विल गेट प्रोपाइल बोरोन हाइड्राइड, और अगर आप इसकी दो मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन करा देते हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो यू विल गेट ट्राइप्रोपाइल बोरोन। ओके, और ये जो ट्राइप्रोपाइल बोरोन बना, इसको आप क्या लिख सकते हो, R3 बोरोन लिख सकते हो, या जो इथाइल बोरोन बना था उसको भी आप क्या लिख सकते हो, ट्राई अल्काइल बोरोन आप लिख सकते हो। ये जो ट्राई अल्काइल बोरोन बना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इसकी क्या होती है, बहुत सारी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। हम वन बाय वन इसका क्या देखते हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशन। ये जो ट्राई इथाइल बोरोन बना, इसकी क्या होती है, बहुत सारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस होती हैं। हम क्या देखते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएं तो क्या होता है। फर्स्ट ये जो पेरोक्साइड है, ये एल्कलाइन मीडियम में OH माइनस से रिएक्शन करके इट गिव्स पेरोक्साइड आयन प्लस H2O। ये जो पेरोक्साइड आयन है, ये अटैक करता है किस पे, बोरोन पे, बिकॉज बोरोन हैज वैकेंट p ऑर्बिटल, और जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो ये खुद इससे अटैच हो जाता है। अब ये जो टेट्रावैलेंट बोरोन का कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसमें से क्या होगा, ये कार्बन अटैक करता है एडजेसेंट ऑक्सीजन के ऊपर जो कि बोरोन से अटैच्ड है, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑक्सीजन पे, और यू गेट OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, और कार्बन जुड़ गया ऑक्सीजन के थ्रू बोरोन से, तो ये बन गया CH3CH2O BRR। मैंने क्या किया, ये जो दो इथाइल ग्रुप्स थे, इनको कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, यहाँ पे R बना के लिख दिया है। अब सिमिलर वे में अगर दोबारा इसके ऊपर वही पेरोक्साइड आयन आके अटैक करे और फिर उसमें से OH आयन निकल जाए और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, तो हम क्या देखते हैं, वन बाय वन ऑल 3 R ग्रुप्स जो है बोरोन से, वो जैसे यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड बनाए हुए थे, डायरेक्ट ना बनाकर ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, एंड यू गेट ट्राई इथॉक्सी बोरोन। ये जो ट्राई इथॉक्सी बोरोन मिला, इसके ऊपर क्या होता है, फर्दर OH आयन या एल्कली मीडियम में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट OH आयन अटैक करेंगे, बिकॉज बोरोन का ऑर्बिटल जो है वैकेंट है, तो फर्स्ट तो बोरोन इससे अटैच हो जाएगा, और ये OH जो है बोरोन से अटैक हो जाएगा, और बोरोन के ऊपर क्या आ जाएगा, यूनि नेगेटिव चार्ज। अब इसका जो ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होगा या हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये CH3CH2OH क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, तो OH आयन देखो यहाँ एंटर किया और यहाँ OH आयन क्या हो गया, बाहर निकला। लेकिन ये वाला OH बोरोन से जुड़ा रहा। अब सेम वे में दोबारा एक OH आए और इसके ऊपर जुड़े, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, जबकि एक जगह क्या आ चुका है OH, दो जगह क्या है OR, और ये बाहर निकल चुका, तो क्या होगा, एक OR और बाहर निकल जाएगा H लिखकर, और 2 OH हो जाएंगे, फिर 3 OH हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को अगर आप 3 टाइम्स क्या करते हो, रिपीट करते हो, एक बार तो हो ही गई, फिर 2 बार और रिपीट करते हो, तो यू गेट बोरिक एसिड H3BO3 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल। पहले एक बनेगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, तो अल्टीमेटली यू गॉट इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ देखो, आपने स्टार्टिंग किससे की थी, इथीन से। अब इथीन में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गई,
तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एंड ये ऑक्सीडेशन वाया हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इथीन से पहले आपने ट्राइइथाइल बोरोन बनाया, ट्राइइथाइल बोरोन की आपने किससे रिएक्शन कराई, H2O2 और NaOH से कराई, और आपको क्या मिल गया, एल्कोहल। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन, इसकी ट्राइइथाइल बोरोन की रिएक्शन H2O2 NaOH से ना कराकर किससे कराती, NaOH और H2O से कराती। देखो मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ कि H2O2 को हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके पास क्या है, 2 OH ग्रुप। तो 2 OH में से एक तो इसने क्या दे दिया, R को दे दिया, और एक किसको दे दिया, B को। देखो ये ब्रेक किया, एक इसको, फिर ये ब्रेक किया, एक इसको, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 ने 6 OH दिए, 3 तो इन तीनों को दिए, तो 3 बन गए इथाइल अल्कोहल, 3 दे दिए बोरोन को, और क्या बन गया, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। लेकिन अगर मैं NaOH और वाटर से रिएक्शन कराऊं तो वाटर के पास क्या होता है, एक H और एक OH, और 3 के पास क्या होगा, 3 H और 3 OH। OH हमेशा किसके पास जाएगा, बोरोन के पास जाएगा, तो यू विल गेट BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड। अब बाकी 3 हाइड्रोजन है, वो किसके पास जाएंगे, R ग्रुप के पास, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथेन। तो देखो हाइड्रोबोरोनेशन से ऑक्सीडेशन भी होता है, और हाइड्रोबोरोनेशन पे अगर आप NaOH और H2O की रिएक्शन करा दो तो आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एल्केन भी मिल सकती है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपको एल्केन मिल जाएंगे, इथेन। लेकिन अगर आपने NaOH और HOCl की रिएक्शन कराई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड की रिएक्शन कराई, तो हम क्या देखते हैं, इसके पास 3 तो OH होंगे और 3 ही क्या होंगे, Cl होंगे। तो तीनों OH किसको मिलेंगे, बोरोन को, तो वो तो बन जाएगा बोरिक एसिड, और 3 Cl किसको मिल जाएंगे, R ग्रुप को, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Cl। तो यहाँ ध्यान दो, आपकी बिगनिंग किससे थी, इथीन से, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, क्लोरोइथेन। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या हो गया, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम देखते हैं हाइड्रोबोरोनेशन से ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, और हाइड्रोहेलोजिनेशन भी हो सकता है। अब इस केस में हमने पूरे में क्या देखा कि हमने बिगनिंग किससे की थी, इथीन से, जिसके दोनों कार्बन इक्वलेंट थे। तो आप चाहे मार्कोनिकॉफ से करो, चाहे आप एंटी मार्कोनिकॉफ से करो, प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, सेम। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन किससे स्टार्ट होती, इथीन की जगह प्रोपीन से, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता, वो मार्कोनिकॉफ से होता या एंटी मार्कोनिकॉफ से। ध्यान दो, आपने लिया CH3CH CH2 प्रोपीन। अब इसमें दोनों अनसैचुरेट कार्बन इक्वलेंट नहीं है, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे राइट साइड बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल। तो यहाँ आपको मिलने वाला है CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, ट्राई प्रोपाइल बोरोन, ये मिलेगा आपको। ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरोन मिला, इसका आपने क्या किया, H2O2 और NaOH ये वाली रिएक्शन कराई, तो यू विल गेट CH3 CH2 CH2OH, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 प्रोपेनॉल, और साथ में मिलेगा BOH का होल थ्राइस। और अगर मैं इसी मॉलिक्यूल पे H2O NaOH की रिएक्शन कराऊं तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, अब तो आपको मिलने वाला है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन प्लस बोरिक एसिड। और यदि मैंने HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और NaOH अल्कलाइन मीडियम में करा दी, तो आपको मिला CH3 CH2 CH2 Cl के 3 मॉलिक्यूल्स प्लस आपको मिला H3BO3। तो यहाँ आप ध्यान दो, रिएक्शन इज फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। यस, इट इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। देखो CH3CH CH2 था, अगर आप सिंपल डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रेशन करते तो आप यहाँ हाइड्रोजन देते, और मार्कोनिकॉफ से क्या यहाँ पे क्या देते, OH, यानी कि 2 प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ आपने अगर हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन किया
तो पहले हाइड्रोजन इस कार्बन को मिला, टर्मिनल कार्बन पे कौन अटैच हुआ, बोरोन। और अब जब आप इसका पेरोक्साइड से हाइड्रोलिसिस करोगे, पेरोक्साइड से इसका फिशन करोगे तो यू विल गेट 1 प्रोपेनॉल। तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये किसको फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और साथ में ये जो प्रोडक्ट बनता है H इधर आएगा और OH भी इसी साइड आएगा, तो आपको कैसा प्रोडक्ट मिलता है, सिन प्रोडक्ट मिलता है। इसके अभी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। These are few more examples of hydroboronation oxidation. I have taken 1-butene. 1-butene में क्या होगा कि पहले यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ पे बोरोन अटैच होगा इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे बोरोन और 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे। फिर जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम 1-ब्यूटीन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे ट्राई ब्यूटाइल बोरोन मिलेगा, जिसका फर्दर अगर हम क्या कराएं, NaOH मतलब एल्कलाइन मीडियम में पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो वी विल गेट CH3 CH2 CH2OH। मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग OH जो है वो टर्मिनल कार्बन पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते तो क्या होता, हाइड्रोजन इधर OH इधर आता और आपका जो यील्ड होती प्रोडक्ट होता वो क्या होता, 2-ब्यूटेनॉल होता। नेक्स्ट आपने लिया 1-मिथाइल 1-हेक्सीन। 1-मिथाइल 1-हेक्सीन में जब हम बोरोन हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन पहले कहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होंगे, इस तरीके से, क्योंकि मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये कार्बन जो है वो किससे अटैच होने वाला है, बोरोन से। तो बोरोन इस तरीके से 3 ग्रुप से अटैच हो जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरोन बन जाएगा, जिसका अगर हम इसी तरीके से NaOH और पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएं यानी कि ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें क्या मिलेगा, ये 2-मिथाइल 1-हेक्सेनॉल हमें ये मिलेगा। लेकिन अगर मैंने आइसोब्यूटिलीन लिया, इसका नाम आइसोब्यूटिलीन भी होता है, आइसोब्यूटीन भी होता है और 2-मिथाइल प्रोपीन भी होता है। अब अगर मैं इसका हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन कराऊं यानी कि बोरोनेशन भी और साथ में इसका ऑक्सीडेशन भी कराऊं तो मैं क्या देखती हूँ कि हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे आएगा, बिकॉज दोनों मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही शिफ्ट होंगे, तो बोरोन विल गेट अटैच्ड विद दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड ऑन दिस कार्बन। तो ये आपको अल्कोहल मिलने वाला है जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर मैंने क्या लिया, 1-विनाइल साइक्लोपेंटेन लिया, तो 1 इसको मैं इथिनाइल भी बोल सकती हूँ। तो इसका अगर मैं पहचान करने के लिए मैंने रिएक्शन किससे करा दी, BD3 यानी कि BH3 की जगह ड्यूटीरियम बोरोन ले लिया मैंने। तो जब तीनों के तीनों ड्यूटीरियम हाइड्रोजन है तो उसकी रिएक्शन कराने पर बताओ इस कार्बन पे क्या आएगा, ड्यूटीरियम आएगा, बिकॉज पहला हाइड्रोजन किससे आता है, बोरोन हाइड्राइड से, और यहाँ पे क्योंकि BD3 है तो आपको पहले इस कार्बन पे क्या मिलेगा, D ड्यूटीरियम मिलेगा। और फिर जब आप इसका क्या करोगे, NaOH और H2O2 से रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट OH ऑन दिस कार्बन। और इसमें भी क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव लाइक दैट ओनली। और अगर मैंने 1-मिथाइल 1-साइक्लोपेंटीन लिया इसी में, अब मैं देखने जा रही हूँ कि इसका क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है मुझे। तो यहाँ देखो BD3 लिया तो पहली बात समझ लो कि यहाँ पे D आने वाला है एक, और दूसरा क्या आने वाला है OH यानी कि HOH ना कि DOH ग्रुप आने वाला है। अब इसमें जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये देखो इसका इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी तरीके से शिफ्ट होंगे। तो यानी कि जो आपका बोरोन जुड़ने वाला है वो इस कार्बन पे जुड़ने वाला है जो कि CH3 वाला कार्बन नहीं है। CH3 वाले पे क्या आएगा, हमेशा D। तो देखो CH3 वाले पे मैंने D लगा दिया, अब मेरे को लगाना था OH। तो अब OH के मेरे पास 2 चांस है, या तो ऊपर से लगाऊं या नीचे से लगाऊं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, सिन एडिशन होता है। तो देखो आपको क्या मिलेगा, OH और D दोनों डाउनवर्ड मिल सकते हैं, OH और D दोनों अपवर्ड या बैक साइड ऑफ द प्लेन मान लो इनको
मान लो आप फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन। तो ये दोनों क्या है, सिन प्रोडक्ट है। ये भी सिन है और ये भी क्या है, सिन। लेकिन इसमें देखो डी बैक साइड है और OH क्या है, फ्रंट साइड है। तो ये आपका प्रोडक्ट है एंटी। तो हम क्या देखते हैं, इसमें एंटी प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, सिन प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई ऑल वीडियोज हाउ टू मेमोराइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज more than 70% reactions of each and every book, and it will help you to fight competitions also. Thank you.